वेलकम बैक टू द Pavilion। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY ज़ैप ऐप। मैं हूं फख्र आलम और इस वक्त खबर ऑस्ट्रेलिया से यह है कि मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपनी तारीख का सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच जीत लिया। नामीबिया को उन्होंने शिकस्त दी। अब से कुछ देर पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे थे वो आखिरी लम्हात और ये है स्कोर कार्ड। इस तरह थी सूरत हाल के मुत्तहदा अरब अमीरात UAE ने पहले बैटिंग करके 148 रन किए 3 विकेटों के नुकसान पे। लग यूँ रहा था कि शायद ये टोटल काफ़ी नहीं है। मोहम्मद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, मिड सेंचुरी जो है वो की। शिकोंगा देयर पिक ऑफ द बॉलर्स जस्ट 8 runs बट in that one over that he bowled. Coming back, Namibia responding 141, not good enough. Wiese there trying his best, and of course the Wiese show was on display. Unfortunately, it could not close the innings. Basil, Zahoor, Wasim, everybody bowled and chipped in, and that's how the UAE scored their first ever victory in a T20 World Cup game. So a big congratulations to everyone in the United Arab Emirates, to all the residents and citizens, including myself and Shoaib Malik. Happy times there, but as they said earlier, tragedy, heartbreak for Namibia. और इसके साथ दोस्तों ग्रुप ए का जो इस वक्त सूरत हाल है वो यूं हुई है कि श्रीलंका टॉप पे है टेबल की, चुके आज जो अपना मैच जो थी वो जीती थी पहले। नेदरलैंड्स अब दूसरे नंबर पे आ गया है। Namibia unfortunately do not qualify, neither do UAE, but UAE go home with that consolation win and they'd be very very happy with it. This might give them direction for a future plan of action. That's how this group has shaped up. आइए जरा नजर डालते हैं आपके ये सुपर 12 की तरफ क्या सूरत हाल बनती है कि कौन किस ग्रुप के अंदर जा रहा है। ये दो टीमें क्वालिफाई करके आगे किस तरफ जा रही हैं, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स। सो विच ग्रुप? श्रीलंका इज गोइंग इनटू द ग्रुप 1 where they're going to be fighting alongside Afghanistan, Australia, England, New Zealand, Sri Lanka. And for Group B, we've got Netherlands. So now there is one spot in Group 2 and one spot in Group 1. तो ये कल फैसला होगा कि कौन सी टीमें जो हैं वो रनर अप और विनर्स जो हैं वो कौन से ग्रुप में जाएंगे। That's how it's going to be. Let me bring in my panelists, the legends, the icons, the heroes, people who've served the game of cricket and Pakistan really well all their lives. With me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. Gentlemen, what a great game of cricket in the end there. UAE winning. Wasim, good times for them. Yeah, I suppose the first win in T20 World Cup, that's a big deal, especially associate country. और बड़ा अच्छा मैच जीते हैं। I thought at last 2 overs जब इकट्ठे हम देख रहे थे that probably David Wiese will take the game away, but Wasim came out with his magic wand and bowled that brilliant over. और उसमें अब because usually देखा जाए आजकल की क्रिकेट में 14 runs सेट बैट्समैन दोनों आपके सामने हैं तो मोस्टली टीमें बैटिंग 90% वो जीत जाती हैं। सो क्रेडिट टू द UAE टीम, मस्ट बी अ बिग डील फॉर देम। And I think, I suppose, learning curve for UAE is to like we have been discussing from last 3-4 days, that how to involve some young blood into the team. That's where I think they should go from here onwards. But well done to the teams. They've qualified, Sri Lanka and Netherlands. Yes, and Netherlands very happy there with the UAE victory. You could see throughout the match, Waqar, that the Netherlands camp, a lot of people were still there watching this game very closely, monitoring it, and super happy that UAE did what they did today, winning this game from Namibia. But let's give credit to the UAE bowlers. They defended this total well, especially with Wiese and his half century. It looked like he's going to take the game away. पहले तो ये है कि UAE को मेरे ख्याल में थोड़े से रन्स और करने चाहिए थे। जो उनकी अगर विकेट्स देखी जाएँ तो सिर्फ 3 गिरी हैं और 148। आई डोंट थिंक ही वाज इनफ ऑन दैट पिच। येस, credit must be given to the bowlers. I thought the captaincy was really good, you know, the way he shuffled his bowler. Yes, end पे आके आखिरी ओवर में they were confused. आपने देखा कि there was a big meeting going on कि आखिरी ओवर they were trying to win that game before that and unfortunately नहीं हुआ। लेकिन what an over. I mean, it was Wasim's day. With the bat and with the ball, that big wicket of Wiese, because Wiese looked $1 million. He looked like he's gonna tear them apart and win this game. But that's the way T20 cricket goes. Yes, totally. Shoaib Malik, very happy. Congratulations to both of us, of course. But not only that, your prediction. You're the only one who predicted that UAE will win today. So, कैसा महसूस हो रहा है? UAE जैसा। सरप्राइज्ड? नहीं, मुझे क्योंकि जो मोहम्मद वसीम थे उनकी अगर हम देखें तो 2-3 इनिंग्स जो थी वो अच्छी नहीं गई थी और मैंने उनको देखा है लोकल क्रिकेट में भी UAE में कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और उनके जो शॉट सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी है और
जो लेग स्पिनर था यूएई के पास मैपन, मुझे ये लगा कि वो आज जो है ना वो इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि मुश्किल है रिस्ट स्पिनर, अच्छा रिस्ट स्पिनर किसी भी एसोसिएट कंट्री के लिए उसको खेलना और फिर रन्स बनाने। और ये था कि वो रन्स अच्छा टोटल कर गए हुए थे 148, और हम लोगों ने देखा कि एनीथिंग क्लोज टू 150 teams have been fighting. Yeah, it becomes really good. Talking about wrist spinners, मिसबा, हमने पहले दिन से जब से हमने डेटा देखना शुरू किया है वेन्यूज़ का इन ऑस्ट्रेलिया, कंसिस्टेंटली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि finger spinners are more successful compared to wrist spinners. But Miyappa has been an impact player in both the games. The first पिछली गेम में हैट्रिक की और आज भी काफ़ी बुरे, लेकिन क्या वजह है आपको लगता है कि ही इज़ मोर सक्सेसफुल और ही हैज़ बीन एन इम्पैक्टफुल रिस्ट स्पिनर हियर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेयरएज द डेटा सजेस्ट समथिंग एल्स? आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि सामने जो अभी क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं तो उस तरह रिस्ट स्पिन को इतना अच्छी खेलने वाली टीमें नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और दूसरा थोड़ी सी मुझे लगता है कि कंडीशंस भी सूट की हैं पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, और अच्छी जगह पे बॉल गिराए हैं और थोड़ा बहुत टर्न भी मिला है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आप उस एक कॉरिडोर में बॉल करते हैं, और उस दिन भी हमने बात की कि छोटा स्पिन होता है जिसका वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंबे स्पिन पे आप कई दफ़ा थोड़ा आइडिया आपको हो जाता है। इसका एक्शन जिस तरह इसका हाथ आता है वो ऐसे लगता है आपको जैसे टॉप स्पिन कर रहा है। Right. गुगली करते हुए, लेग स्पिन करते हुए तो थोड़ा क्लियरली आप उसको देख नहीं सकते। गुगली के लिए तो पूरा उल्टा हाथ घूम रहा है, या लेग स्पिन के लिए यूँ, इसका हाथ नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बॉल ऐसे सीधा ही निकलता है बजाय यूँ या यूँ निकलने के। ये अपने कैमरे की तरफ करके दिखाएं जरा एग्जैक्टली, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो जरा समझ सकें इसको यानी बेहतर ये तरीके फ्लिक है लेग स्पिनर की, वो लंबा स्पिन जो करते हैं उनकी जो फ्लिक है वो आपको बॉल हाथ से निकलते हुए नज़र आता है। और जब आप गुगली करते हैं तो उस पर भी आपका हाथ वो जो फ्लिक है वो नज़र आता है, जो बिल्कुल यहाँ से सीधी रहती है रिस्ट आपकी। इसकी लाइक टॉप स्पिन नॉर्मली जो स्पिनर करते हैं लेग स्पिनर्स, उस तरह गेंद निकलता है और आपको इतना आइडिया नहीं होता कि ये बॉल लेग स्पिन होगा, गुगली होगी या सीधा। कई दफ़ा आप देखें ऐसी विकेटें भी उसको मिली हैं, वो सेम बॉल सीधा रह गया या हल्का सा स्पिन हुआ है जिस पे उसने हैट्रिक की है उस दिन बॉल श्रीलंका की गेंद, वो भी बहुत छोटा सा स्पिन हुआ है। तो बेसिकली वो सीम ऐसे ही लग रही थी जैसे टॉप स्पिन। I think for a youngster coming out of under 19, he's got a really good control. Right arm leg spinner इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे कंट्रोल से बॉलिंग करना, I think that is a big plus for him. He is going to be a force in the coming days. Lots of energy, टीम को भी एनर्जी देता है। Yes, he's got few issues जो आप बता रहे हो मिसबा के, sideways नहीं है अभी उस तरह जो उसको फ्लिक करनी चाहिए, but I'm sure he will learn and he's got a bright future. All right, let's take a... Sorry, Shoaib, you wanted to say something? Go ahead. जैसे आपने सुबह वकार भाई बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जैसे 3-day 4-day क्रिकेट आएगी तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मिसबा भाई ने एक्सप्लेन किया या वकार भाई ने, कि उसकी सीम पोजीशनिंग सीधी जाती है क्योंकि उसकी जो रिस्ट है वो सीधी जा रही है। तो जब वो लंबी क्रिकेट खेलेगा, ही हैज़ टू टर्न द बॉल टू टेक विकेट्स, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको। राइट, बैटिंग की जरा बात कर लेते हैं, बिकॉज वी सीन 2 great innings टुडे। एक तरफ मोहम्मद वसीम की इनिंग्स और एक तरफ डेविड वीजे की इनिंग्स। मोहम्मद वसीम की ग्रेट तो नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट ज़रूर कहेंगे। उसने 50 किए 41 गेंदों पे जी, और वो भी जब 50 लास्ट 4 रन भी उसने सिंगलें की हैं, बजाय के जब आप 16वें 17वें 15वें ओवर में होते हो 50 के लिए पर्सनल जाओ, जस्ट गो आफ्टर द बॉल, सिंगल्स तो मिलती रहेंगी। आई थिंक जो गेम चेंज किया वो बासिल ने किया आके, जो उसने 25 किया 14 गेंदों पे, अगर 25 ना करता तो इट वुड हैव बीन 130 एक्चुअली वसीम बड़ी आपने सही बात की। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये थी कि अगर आज आपने श्रीलंका वाला जो मैच था शुरू में, उसमें भी आपने देखा श्रीलंका वाज रियली स्टक, दे कुडंट गेट अ फ्लाइंग स्टार्ट। It has been both 2 slow starts today that we have witnessed. So far we have seen this. वो जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस की कि वहाँ पे बाउंस होता है, टर्न भी होता है, स्पिनर को भी बाउंस मिलता है, तो पता लग रहा है कि इट्स नॉट दैट इजी। विकेट्स लुक क्वाइट ओके, नॉट डेंजरस, बट दे वेरी अनलाइक सब कॉन्टिनेंट पिच के टांग रख के सीधी मारी जाओ कि बॉलर बच। You have to apply as a batsman. You have to. वसीम भाई जो देखा है वो यही कि स्पिनर का गेंद भी इवन विद दैट सीम, वो जो नई बॉल थी उस पर ज़्यादा मुश्किल हो रही थी खेलते हुए बैट्समैन को, अटैकिंग शॉट मारते हुए।
जो बॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है, सिलाई थोड़ी सी अंदर जाती है, तो फिर बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है, रन्स किए हैं। अगर आप पिछले मैचेस भी देखें, नमीबिया स्ट्रगल किया, नीचे से आके पार्टनरशिप लगी। अभी भी जो सेट बैट्समैन भी थे उन्होंने भी मेनली जो रन्स किए हैं वो बाद में आके किए हैं आफ्टर 10 ओवर्स। तो मे बी ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है टीम की कि हाँ लंबा, क्योंकि 2 पिछली इनिंग्स में UAE ने स्ट्रगल किया है, तो थोड़ा उन्होंने विकेट्स को प्रिजर्व किया और देखा कि यार यहाँ 150 इज़ अ गुड स्कोर, यहाँ पे हम अपनी बॉलिंग के साथ डिफेंड कर सकते हैं, तो मेक श्योर करें कि हम इतने रन्स करें, विकेट्स इन हैंड रखें। और फिर आई थिंक द वे दे फिनिश, वो एक ऐसा टोटल उनको मिल गया कि जिसको उन्होंने अच्छी बॉलिंग के साथ डिफेंड। जी बिल्कुल। अच्छा, डेविड वीजे मोहम्मद वसीम की अगर हम कंपैरिजन करें, डेविड वीजे कट के ऊपर बड़े आज स्ट्रॉन्ग थे, कट शॉट के ऊपर, और 73% कंट्रोल, 17 रन इन्होंने कट शॉट पे स्क्वायर ऑफ द विकेट लिए हैं। वेयरएज मोहम्मद वसीम जो थे वो स्लॉग्स शॉट के ऊपर जो थे, आज उन्होंने 14 रन जो हैं अपने और 78% कंट्रोल के साथ हासिल किए हैं। बोथ ऑफ देम एमिंग स्क्वायर ऑफ द विकेट, both of them going for those shorter boundaries, and that seems to be a strategy, Shoaib, that batsmen are going to apply in these grounds. I think it's a lot depend where the bowlers are bowling. अगर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उसको ईजी है स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना, स्पेशली जो बाउंस है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें ज़्यादा यही है कि वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे, इसीलिए ईजियर था स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना। और अगर हम डेविड वीजे की बात करें तो वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और वो उनको पुराना बॉल खेलना पड़ता है, तो पुराने बॉल पे वैसे ही जो है ना उनकी कोशिश होती है कि यार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ किया जाए, और उनकी स्ट्रेंथ्स भी वही हैं कि उन्हें एनीथिंग उनके क्लोज, उनके स्लॉट में वो छिक्का जैसे ये लगा। और एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी थी, वो हमेशा से हर शॉट के लिए रेडी थे। जो हम कल डिस्कस कर रहे थे पावर हिटिंग पे, वो उनकी मूवमेंट वही थी, लेकिन उसके बाद उसकी इनिशियल मूवमेंट के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्म्स को जो है वो यूज़ कर रहे थे। डोंट यू थिंक अगर ये ऊपर के नंबरों में खेले, अगर 3, 4, 5 में किसी ऊपर के नंबर में खेले, he won't be that effective? He can be if he doesn't change his game. क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि नीचे के बैट्समैन को जब आप ऊपर भेजते हैं तो वो थोड़ा सा ना ये कहता है यार मैं थोड़ी बॉलें ले लूँ, वो उसका गेम नहीं है, मैं थोड़ा टाइम ले लूँ, फिर एकदम आप पे प्रेशर आता है। जैसे ही आप 3-4 डॉट बॉल्स खेलते हैं फिर आपका जो है ना वो दिमाग काम करना छोड़ देता है, फिर आप एक ही तरफ जाते हैं, अब मैं बाउंड्री मारूंगा, उसमें चांस होता है आउट होने। अच्छा वकार, एक चीज़ ये अभी जैसा कह रहे थे कि उनको चूँकि थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे गेंद, तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे थे, कामयाब हुए दोनों तरफ स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने। तो ऐसे मौके पे क्या बॉलर को अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करनी चाहिए कि यार ये पीछे वाली जो बाउंड्री है ये लंबी बाउंड्री है, मैं गेंद थोड़ा लंबा कराऊँ ताकि ये इधर अटैम्प्ट करे और ये कट और ये पुल के शॉट्स ना खेल सके? देखिए प्राइम एग्जाम्पल है आखिरी ओवर। आई थिंक जो आखिरी ओवर जो बच गया है या वीजे की विकेट मिल गई है, वो I don't know if it was a plan or what, but you know it was just there. It was just nice and full. So he was asking Vize to hit down the pitch. Down the pitch. Yeah. And Straight. down the pitch जब आप मारना पड़े 80-81 की boundary meters I'm talking here. That means it is hard. It's hard to clear. Even Vize जैसा बंदा जो who hits it long way, he couldn't clear that boundary. Even West Indies batsmen जो बहुत बड़े hitter हैं, ये देखें, ये किसी भी और दुनिया के ground में ये probably 20 कुर्सियाँ पीछे पड़ा होता है, ठीक है ना, बट दैट इज़ द वे टू गो ऑन दीज ग्राउंड, स्पेशली जो ये रग्बी के ग्राउंड है ना, इसमें आपको नाइस एंड फुल एंड अर्ली ऑन आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट किया। इवन वसीम को भी बॉलिंग जो थी वो थोड़ी शॉर्ट हुई, जिसकी वजह से जो मलिक कह रहा था ना कि स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज वो उन्होंने यूटिलाइज़ किया एंड दे गुड प्लेयर्स। आई मीन दे वेरी गुड प्लेयर्स, जो यूटिलाइज़ करना भी एक कमाल है ना, तो आई थिंक दे प्लेड वेल। विकी भाई एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि वीजे इज़ वेरी गुड डाउन द ग्राउंड, और उन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ किया कि यहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, तो उस तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। अब मुझे लगता है कि आखिरी 2-3 ओवर्स में कहीं ना कहीं ही शुड हैव जस्ट गॉन बैक टू हिज स्ट्रेंथ। जैसे वसीम भाई बात हम कर रहे थे ना कि वो नॉर्मली अगर छक्का मारता है तो वो 90 मीटर का मारता है, हाँ। तो वहाँ पे कई बॉलें ऐसी थी जो फुलर थी, बॉलर डिड द राइट थिंग, लेकिन उसको सामने छक्का लग सकता था, बट ही वाज ओनली रेडी फॉर दैट शॉट जहाँ पे थोड़ा सा रन्स जो है। उससे पिछले ओवर में ना उनको 18 रन्स मिल गए थे,
So sometime आप फिर जब मैच जीतने जाते हैं ना, and then you start thinking like that कि अच्छा मैं यहाँ दुक्का कर लूँ या सिंगल कर लूँ, तो आप कई दफ़ा वो बॉल और मिल जाता है आप, हाँ यही मसला हुआ है यही मसला कि हुआ है। उसने Second last दुक्के लिए हैं, over। उसने हाँ। 2 रन्स लिए उसने हैं। चौके छक्के जब मारता था। बड़ी शॉट्स मारनी थी तब तक देखिए आपकी जितनी मर्जी फिटनेस हो, आपको थोड़ा सा ये भी प्लान करना चाहिए जब आप फिनिश करने के उसमें जा रहे हैं कि यार अब मैं थोड़ा सा ना अपने सांस को ज़रा वापस लेके आऊँगा ताकि मुझसे बड़ी शॉट्स लगें। और एक चीज़ और दिमाग में होनी चाहिए कि बड़ी बाउंड्रीज़ हैं, बड़ी बाउंड्रीज़ हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका सांस जो है वो ज़रा वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीइंग अ फिनिशर खेल रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी बाउंड्रीज पे खेलने की। लेकिन मलिक वही चीज़ मैं एज ए बैट्समैन बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि इसको कैसे आप एडअप करोगे। मैं अगर बैट्समैन एज ए बैट्समैन आखिर पे खेल रहा हूँ, मिडल में खेलना डिफरेंट है व्हेन यू आर चेजिंग समथिंग और आप गेटिंग क्लोज टू द गेम। लेकिन एंड पे आके मुझे लगता है कि जब आप एक किसी चीज़ पे अपने आप को लिमिट करते हैं कि मैंने इधर की बाउंड्री छोड़ी है, इधर मारनी है, तो उसमें क्या होता है आपकी स्ट्रेंथ पे जब बॉल आता है आप उधर सोच नहीं रहे होते, तो ऐसे ही आप आउट होते हैं बाउंड्री पे। उस टाइम पे मुझे लगता है यू जस्ट गो टू योर स्ट्रेंथ कि अब जिधर आएगा मैंने उधर पूरी शॉट मारनी। सो दैट वाज द डिफरेंस। प्रॉब्लम ना होती नहीं, आप दोनों हाँ आगा बाटा को तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं। आप जो बात कर रहे हैं मिसबा भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो 7 आउट थे, इसलिए ना उनके बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि यार मैं किसी तरह ना इस टीम को भी जो है ना इनके बॉलर्स को प्रेशराइज करूं। उन्होंने कर दिया था 2 ओवर में 20 रन। एक सेट बैट्समैन अगर खेल रहा हो तो 60-70% चांसेस होते हैं कि वो अचीव हो जाए, लेकिन उनका जो प्लान था मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था और सिर्फ ये था कि 2-4 दुक्के कम लेते तो 2 छिक्के लग सकते थे। Yes, good point. That is indeed. But David Wiese, what a great game of cricket. What a way he was batting, and he was trying to. आप फेंक सकते हैं बॉल, ये बॉलें फेंकी जा रही हैं दूसरे को, राइट। और इसके सारे दोस्तों आइए चल के नजर डालते हैं फॉल ऑफ विकेट्स ब्रॉट यू बाय कोका कोला। अच्छा वकार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो 19वां ओवर जो बड़ा क्रिटिकल होता है T20 के अंदर, 19वां ओवर जो ज़हूर ने किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। एक वाइड के बाद 5 रन उन्होंने कंसीड किए उस ओवर में, चूँकि 2 ओवरों में 20 रन चाहिए थे, एंड ही बोल्ड रियली टाइट 19th ओवर। Zahoor is a very seasoned bowler. Remember that he's been playing for a long time, and we have seen it many a times. Even जब हम लोग जाते थे ना उधर दुबई वगैरह, शारजा वगैरह, he used to come and bowl in the nets also. It reminds me of a little Abbas also. Very steady, hits the lengths hard, and then of course when you come in the end, इसने भी बहुत अच्छी bowling की कि इसने भी he was forcing Wiese to hit straight. Yes, long balls. You can't go, square of the wicket. So that is experience for you. Experience अगर अच्छा आपको इस तरह की बॉलर आपकी टीम में हो तो that's बिल्कुल 4 overs 20 runs in 2 UAE wickets. खेलने से पहले he played about 29-28 first class games in Pakistan. Right. So मैं था वो T10 लीग में जब पहले शुरू हुई थी पहले साल, good 5-6 years ago, and he was there, and so he's quite experienced like Waqar said. Experience से बड़ा फ़र्क पड़ता है, काम रहते हो under pressure, मैंने कहाँ पे बॉल करना है, क्या मेरी फील्ड है, so that's he looks pretty fit also, He is for his age. How old is he? Any idea? इफ्तिखार से बस 2-4 साल बड़े। This was you by the way last year, right? I'm just kidding, man. I hope nobody takes it seriously कि आप देखें एज के ऊपर जो है आप वो मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का। ऐसी बात नहीं है, हमारी भी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वैसे। अपनी बात कर बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम। Alright, with that it's time for the flying moments brought to you by Emirates. Hello and welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. We saw this last game, UAE defeating Namibia. Well, another upset just as they're exiting, making sure that Namibia also returns back home. But Netherlands just making it through because of that win by the United Arab Emirates. Earlier today we had another game and Sri Lanka winning that one. They must be really relieved because they also pulled through. This is how it went down for Sri Lanka and Netherlands. It was Sri Lanka batting first, 162 for 6. Some great batting there by Mendes, and some really great shots that he played as well. The Netherlands bowlers looked good at times initially, especially the first few overs. But after that, it was the Sri Lankan batting that kind of dominated. Netherlands did, however,
put up a fight. They went for that chase. They did go for that chase. 146 for 9, and Dowd right there with that 71 good innings. Everybody trying to contribute, but in the end, it was Sri Lanka that won by 15 runs and made their way to the Super 12. And Netherlands also made their way to the Super 12, courtesy the UAE victory against Namibia. So ये सूरत हाल है. Slow start for Sri Lanka today, Misbah. When they came out to bat, it looked as if the Netherlands bowlers were really on top of their batting. मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग स्टार्ट में की, स्पेशली प्रिंगल ने जो नया बॉल किया, देखा कि नया बॉल बाउंस हो रहा था, टर्न हो रहा था. बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग राइट एट द स्टार्ट. दे वर इन ट्रबल. आई थिंक सेंसिबली वो जो मलिक ने एक बात की थी शुरू में कि टॉस पे लग रहा था श्रीलंकन कप्तान, वो क्लियरली नज़र आ रहा था कि दे आर अंडर प्रेशर. ऑब्वियसली स्टेक पे थी उनकी क्वालिफिकेशन, तो आई थिंक दैट वाज अनदर रीज़न. और थोड़ा था पेच, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, और जिस तरीके से मीकरन का वो जो ओवर था, 2 विकेट्स, दोनों बॉल ऑलमोस्ट 145 146 पे, उसने और ज़्यादा उन पर प्रेशर डाल दिया. बट आई थिंक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कुशाल मेंडिस की विदाउट दैट इनिंग श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा एक मसला था. Yeah, he stepped up. I mean, 79 of 44 with 5 fours and 5 massive sixes. और यही श्रीलंका का मज़ा ही आता है उनकी क्रिकेट देखने का कि एक आधा प्लेयर चलता है और वो मैच को एंड तक ले जाता है. और ऑन दिस पिच आई थिंक 160 वाज गुड इनफ टोटल विद श्रीलंकन. ऑल्दो थोड़ा सा स्केयर आया था दरमियान में, बट नीदरलैंड की जो बैटिंग थी, एक बैट्समैन ने 70 किया, बाकी ने कोई एक आधा डबल फिगर में आया. बट जनरली जब आप 160 प्लस चेज करने जाती हो, यू नीड अनदर बैट्समैन. एक तो 70 करे, साथ में एक 40 भी करे, कोई 30-35 गेंदों पे. आई थिंक दरमियान में ये आके थोड़ा रह गए थे, बट दे हैव क्वालिफाइड. दे कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. They definitely can. Impressive bowling performance by Netherlands in the first few overs, Waqar. Yeah, I think they read the pitch really well. I mean, giving a new ball to the spinners, and it was gripping, it was spinning, and then फिर बाद में जब पेस बॉलिंग अटैक आया तो दे कंट्रोल द गेम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. इट्स जस्ट दैट वेंडमर आई थॉट उसका जो इंजर्ड होना, उसका बाहर होना, वो जो पूरे ओवर नहीं कर सके, वाज अ लिटिल बिट ऑफ सेटबैक. बट येस, ये मीकरन ने जो बॉलिंग की वाज आउटस्टैंडिंग. दिस ओवर एक्चुअली changed the game, and they did not allow them to really run away with the run rate in the power play. Only 30 runs were scored. So I think they control the game well. But then again, जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं तो उनके पास ऐसे प्लेयर होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस काम आ जाता है. तो आई थिंक आज श्रीलंका वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. विद द बॉल तो हमें पहले से अंदाज़ा था कि उनके स्पिनर्स तंग करेंगे, सरंगा तंग करेगा, सारे तंग करेंगे, लेकिन उनकी जो बैटिंग थी, इट वाज गुड टू सी. येस, अभी भी उनके इश्यूज़ हैं, उनका भी जो भी मिडिल ऑर्डर उस तरीके से रन्स नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल वेल डन श्रीलंका. Shoaib, स्लो स्टार्ट अगेन फॉर श्रीलंका. जिस तरह वकार ने बोला, 30 रन किए उन्होंने पावर प्ले के अंदर, बट देन दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग दैट इनिंग्स. Same was the case in the chase as well. Netherlands also. Same we saw batting first. The UAE constructed, they went slow, and then they started building their innings. Is this going to be a pattern we'll see in the next round of the ICC T20 World Cup? I guess इसीलिए बड़ी टीमों में जो टॉप की टीम्स हैं उनमें और जो एसोसिएट्स हैं, यही डिफरेंस है. वो नहीं देखते कि डू एंड डाई सिचुएशन है, हम हार गए तो क्या होगा. वो नहीं आपने सोचना कि हम हार गए तो क्या होगा, बिकॉज दैट यू कांट कंट्रोल. राइट. तो इसीलिए आप देखें कि लास्ट मैच में श्रीलंका के निशांका ने 50 प्लस रन्स किए थे, आज कुशाल मेंडिस ने किए हैं ये रन्स. बिल्कुल. और यही डिफरेंस है कि फर्स्ट 3 बैटर्स में से कोई भी जब एक बड़े रन्स करता है तो 80-90% यू विन दोज गेम्स. और मूविंग फॉरवर्ड जो सुपर 12 में दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड श्रीलंका, उसमें राजापक्षा और शनाका, इनको रेस करना पड़ेगा क्योंकि आप बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं. मिडिल ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग. यस. और मिडिल ऑर्डर पता नहीं छेड़ी बनी है सब टीमों की. और अगर हम बॉलिंग देखें तो क्लासन ने एक आउट किया, उसके बाद प्रिंगल ने और वेंडर मर्व, इन्होंने बॉलिंग अच्छी की लेकिन इन्होंने विकेट कोई नहीं ली. अगर ये उस टाइम पे विकेट लेते तो हो सकता है इनमें से कुशाल मेंडिस को कोई आउट कर देता, तो ये जो टारगेट हुआ था ये नीचे आ सकता था. बाकी सब ने, अगर आप फिगर्स देखें तो सब ने विकेट्स लिए हैं एक्सेप्ट दीज 2, टिम प्रिंगल एंड वेंडर मर्व.
गुड पॉइंट। कुशाल मेंडिस, व्हाट एन इनिंग्स। जरा ये डीकंस्ट्रक्ट करें हमारे लिए, यू नो, फेज बाय फेज। हाउ डिड ही गो अबाउट हिज बिजनेस टुडे स्कोरिंग दिस वेरी क्रूशियल 79? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे मलिक ने बात की कि असेस द कंडीशंस। वो एग्रेसिव खेलता है, आके वो पावर प्ले में बड़े रन्स करता है, बट ही टुक हिज टाइम और पहले पिच को उसने थोड़ा सा यूज टू है कंडीशंस के, एंड देन द वे ही जस्ट अटैक, दैट्स हिज स्ट्रेंथ नॉर्मली। वो नॉर्मली बॉल अपनी बॉडी के अंदर लेता है अगेंस्ट स्पिन एंड अगेंस्ट पेस ऑल्सो। और दूसरी जो अच्छी चीज़ है कि एक इस ग्राउंड की जो डायमेंशंस हैं उसको बड़ा अच्छा यूज़ किया बीच में आके। वो जो पिकअप शॉट्स थी और स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, द वे ही रेड द पेस कि जो भी थोड़ा सा स्लो बॉल हुआ है ऑफ स्टम्प पे वो उसको मारने नहीं गया स्वीप शॉट। जैसे ही थोड़ा सा पेस पे बॉल किया है बॉलर ने, उसको उसने बॉडी के अंदर लेके पूरे उसने छक्का भी मारा है, उसने चौके भी मारे हैं वहाँ पे। तो दैट वाज आई थिंक समथिंग स्पेशल। और इस प्रेशर में जिस तरीके से उसने हैंडल किया है, दैट वाज द की, क्योंकि सारी टीम पे प्रेशर था कि ये ऐसा मैच है कि ये अगर हमारे से 19-20 हो गया तो वी आर आउट ऑफ वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही। एक चीज़ आपने वसीम देखी, ही वाज पुलिंग द बॉल रियली वेल एंड दे वर कंसिस्टेंटली फीडिंग हिम दैट चैनल वेयर ही हैज स्ट्रेंथ। वो इनएक्सपीरियंस एसोसिएट टीम्स आ जाती हैं, बाकी टीमें होती हैं शायद उसको आगे और ऑफ स्टंप के बाहर करती। ये एक तो मीडियम पेस थी, वो क्रॉस जाता था, जहाँ उसको हल्का सा पीछे नजर आया या आगे भी नजर आया वो गया इधर ही है, और एवरी टाइम ही मिडल इट। नॉर्मली ये डेंजरस प्लेयर है, दे कैन चेंज द गेम। नॉर्मली वसीम भाई आपने देखा होगा पिछले मैच में भी वो और हमारे अगेंस्ट बड़ी दफ़ा हुआ कि बैक ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप और फोर्थ स्टंप के चैनल पे जब भी होता है, बिकॉज ही प्लेज मोर टूवर्ड्स लेग साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस पे ये नॉर्मली वो उस लाइन को कवर नहीं करता और अक्सर इसकी स्लिप लगती है। आई गेस डेटा जो है ना वो यहाँ पे फिर आता है इस उसमें भी। अगर डेटा वाज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एनालिस्ट टू द टीम या बॉलिंग अटैक को कि यार इसके स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ हैं, क्योंकि दे वर कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग हिज बॉडी और वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप उसका वैसा गेम नहीं था, जैसे मिसबा भाई ने भी कहा कि किस स्पिनर ने भी उसे आउटसाइड ऑफ स्टंप किया। देखिए मोस्टली उसके रन्स जो हैं वो ऑन साइड पे हैं एंड दे वर कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग हिज बॉडी, और वहाँ पे जो था वो उसका फेवरेट एरिया। तो वैसे भी छोटी हाइट के जो लोग होते हैं वो वैसे स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, तो ये भी इसकी हाइट भी जो है कम है। सामने की स्ट्रेंथ उसकी नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं, बाउंड्री डायमेंशंस, यहाँ पे तो उसको आप सामने ही हिट कराओ कि ठीक है सामने मारे आप फुलर लेंथ। तो इतने ज़्यादा बाउंड्रीज लेग साइड पे जाना, स्क्वायर ऑफ द विकेट, दैट मीन्स कि यू आर फीडिंग हिम देयर एट हिज स्ट्रेंथ। Yeah, it was very visible. Max Dowd's innings from Netherlands, that was also a good innings. At least somebody was putting up a fight and trying to go after that total. How was his approach different to the rest of his batsmen in his camp? Where were they all going wrong? I guess he was feeling good about himself today because इसने भी कोई इतने ज़्यादा रन्स नहीं करके आया इस टूर्नामेंट। वेरी यूनिक काइंड ऑफ स्टाइल है, बेसबॉल स्टाइल, बल्ला उठा के रखता है, एंड ही प्लेज रियली वेल एंड ही मैनेज्ड थिंग्स very nicely early on. Being an opener with that sort of style, it is not easy to control. अच्छी बॉलिंग होती तो probably इसको पकड़ लेते, लेकिन he's a big hitter, again on-side player. ऑन साइड पे आजकल T20 क्रिकेट को देखा जाए तो सारे ज़्यादातर बॉटम हैंड के प्लेयर होते हैं, एंड दे लुक टू टारगेट दैट मिड ऑन, मिड विकेट, काउ कॉर्नर एंड स्क्वायर ऑल्सो। वेरी रेयर यू से दिस शॉट। आई मीन वी सॉ हिम प्लेइंग couple of shots and then probably Wiese played couple of really good shots जो square of the wicket थी, otherwise it was mainly on the onside. जी शोएब, डिफरेंस बिटवीन दीज टू जिन्होंने रन्स किए हैं उसमें देखें कुशाल मेंडिस ने 79 रन्स किए हैं 44 बॉल्स खेल के, और इन्होंने रन्स किए हैं 53 बॉल्स खेल के 71। Right. अगर बॉल्स भी थोड़े से इन्होंने कम लिए होते तो हो सकता है कि कोई और बैट्समैन आके वो यूटिलाइज करता उन बॉल्स को और मैच जीता जा सकता। हालांकि कुशाल मेंडिस ने शेबी ऊपर से उसने काफ़ी बॉल्स डॉट बॉल खेले हैं शुरू में जाके, टुक हिज टाइम। इट्स जस्ट लास्ट 20 ऑड बॉल्स जो खेला है ना, ही वाज वेरी वेरी अग्रेसिव।
Yeah, there's a big difference in their strike rate. 133 foot out and almost 179 for Mendes there. एक बड़ा interesting था और वो था डिसिल्वा का LBW मिस पार. Did you see that? And we were discussing that earlier as well. And that actually shows you how important the role of the non-striker is, because that decision was. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, आप जरा ये नोट कीजिए. So देखिए ना, वो उसका ध्यान ही नहीं है, नॉन स्ट्राइकर पता नहीं कहाँ देख रहा है और वो बिल्कुल एज ऑफ द क्रीज है. Right. आपकी कोशिश होनी चाहिए, वो देखें वो कहाँ पे है. ये जो पट्टी है आपको और क्लोज होना चाहिए. आप बिल्कुल सामने खड़े हैं और यू फील लाइक यू आर बेसिकली अंपायर, क्योंकि आप हर गेंद पे कुछ भी हो सकता है. उसने जो खेल रहा है उसने आपसे ही पूछना है. तो ये कोचेस मेरे ख्याल सबसे पहले यही चीज़ बताते हैं. बट So is that so? Since both of you have been coaches, both you and Waqar have been coaches, was this ever in discussions with the batsmen when they were? आजकल के दौर में होती होगी, हर बैटिंग मीटिंग में हर बैटिंग मीटिंग में अगर आप मुझे ये लगता है कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बैट्समैन है, जब वो बहुत ज़्यादा अपनी बैटिंग के बारे में सोच रहा होता है और सडनली कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है. और द अदर वर्ड इज पंजाबी में गुआचा होता है. You know, how we talk about game awareness, situation awareness, and this coaches को ये बात नहीं बतानी चाहिए. आपको खुद पता होना चाहिए this day and age. अगर आप इसको दोबारा देखें ना तो वो yes he's little bit wider, you know, और उस वाइड एंगल से उसको ऐसा फील हुआ होगा, यहाँ से देखें अगर एंगल से तो कि उसको नजर आया कि यार ये तो सामने विकेटों को लग रहा है और करीब भी लगा हुआ था. ये इस एंगल से तो उसको ऑफ स्टंप नहीं नजर आएगी ना, हमें यहाँ से ऑफ स्टंप नजर आ रही है. 20 मेन बैट्समैन है, रिफर ले लो भाई, क्या घर लेके जाने अगर स्पेशली जो इनफॉर्म है और you're not 100% श्योर कि यार बिल्कुल विकेटों में लगा है, तो जस्ट टेक इट. क्लियरली जो कन्वर्सेशन भी थी वो फील हो रही थी कि जो बैटर जिसने खेला है वो थोड़ा सा था कि मैं ये रिव्यू लूँ, लेकिन वो जब सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये भी मसला होता है कि आप फिर सोचते हो कि यार ये टीम में फिर 19-20 बात हुई तो फिर लगता है कि इसने सेल्फिश अपनी विकेट बचाने के लिए दिया है. तो प्रोएक्टिव होना चाहिए जो सामने है और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए भाई. वैसे उनका लीडर भी प्रेशर में था टॉस पे, तो जब मैसेज ऐसा हो ड्रेसिंग रूम में तो बैट्समैन भी घबराता है कि यार अगर मैंने आउट हुआ हुआ ले लिया और अगर हमारे पास रिव्यू ना हुआ और कोई नॉट आउट हुआ तो वो फिर सारा साल वही बात चलती रहेगी, यार बड़ा इंपॉर्टेंट था. Stay in the present, stay in the present. I think you're overthinking too much. Important thing is present. Important thing was कि भी मेन प्लेयर था, अगर उसका रिव्यू ज़ाया भी हो जाता wouldn't have been a problem. It would have not been a problem. And उसके साथ ही दोस्तों टाइम हुआ है The Way Forward का, brought to you by Bank Al Falah. All right, and I'm going to take this to you, Wasim. What do you think is the way forward? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. आपस में गप्पे लग रही हैं, प्रोग्राम चल रहा है. ऑलराइट. सवाल था आपसे कि वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए फॉर श्रीलंका नाउ दैट दे हैव मेड इट टू द सुपर 12. How should they go about their business? They just to play fearless cricket like they did in Asia Cup, especially in the finals. They have match winner in Hasaranga जो अकेला मैच जिता सकता है. राजा पक्षा हमने देखा गेम चेंजर, और मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है. पहले मैचों में श्रीलंका बैटर्स आउटसाइड टॉप 3 ओनली स्कोर्ड 17 रन इन द लास्ट गेम, और इसमें मिडिल ऑर्डर ने सिर्फ 65 किया है. सो उस पर थोड़ा सा इंप्रूव करना है इन्होंने. ऑब्वियसली अब फास्ट बॉलिंग इनकी एक तो मेन शमीरा की इंजरी होगी, उससे फ़र्क पड़ेगा. बट लेट्स सी, वो टीम ऐसी है कि कभी किसी ना किसी को कहीं भी हरा सकती है श्रीलंकन. कहीं ना कहीं. Quickly, Waqar, what should be the way forward for Netherlands in this tournament? Because they've also kind of snuck into the Super 12 courtesy of the United Arab Emirates. I think they should just get over this first, because ये कुछ दिन तो they'll be like over the moon for going through to the Super 12. I think it's a big achievement. Don't forget, I mean, you know, semi-professionals going into going to be playing with the big boys. I think it's a great achievement. But of course, they got to forget it very quickly. Look, realistically, they're not going to win it. लेकिन किसी ना किसी का सिर ले जा सकता है. उसमें 2 अपसेट किए हुए उन्होंने. या वही मैं कह रहा हूं कि शायद जीतेंगे नहीं. टीम के खिलाफ किए हुए हैं नीदरलैंड ने. हाँ, इट्स नॉट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट दैट टीम. आयरलैंड का मुझे पता है, आयरलैंड ने एक दो इंग्लैंड को बड़ा पटाया था. इन्होंने इंग्लैंड को 2 दफा T20 वर्ल्ड कप में हराया. इंग्लैंड सारे को हरी हुई है. Because they are familiar with their conditions, with their players, क्योंकि mostly जो है ये वहाँ खेलते हैं. Good point. And that was the way forward, brought to you by Bank Al Falah. और दोस्तों इसके साथ ही हम लेंगे एक वक्फा ऑन द पेविलियन, मगर जब वापस आएंगे तो आपके सवालों का सिलसिला #AskThePavilion
इसको बाकायदगी से शुरू करेंगे, तो अपने सवालात हमारी तरफ भेजना शुरू कर दीजिए। ट्विटर पे जाइए, #AskThePavilion इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ अपना सवाल जो है भेजिए। अपने किसी पैनलिस्ट से पूछना हो, जनरल कोई सवाल हो, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, गेटिंग योर फीडबैक एंड टॉकिंग अबाउट द गेम दैट वी ऑल लव। You're watching A Sports and 10 Sports along with the ARY Zap app, and this is the Pavilion with our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. See you on the other side of the break. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम और आप लोग देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. So you saw the two games that went down today. Congratulations to Sri Lanka and Netherlands. They have now moved on to the Super 12s और कल के बाद फैसला होगा कि अगली कौन सी दो टीमें जो Super 12 में आती हैं. A little sad for Namibia, but they did have a great moment when they defeated Sri Lanka earlier in this tournament. And well, congratulations to the United Arab Emirates for their first ever victory in a T20 World Cup game. I know they must be really, really happy. We are very happy. With me in the studio, I've got the legends, the masters, the kings, the rulers of the game of cricket who serve Pakistan and the game of cricket. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे बाकायदगी से अपना सिलसिला of Ask the Pavilion का, and so it's time to start off with Ask the Pavilion और आपके सवाल जो है हमारे पास आना शुरू हो गए। पहला सवाल जो है ये शोएब मलिक आपके लिए। शोएब मलिक, this is addressed for you. Assalamu alaikum everyone. I'm a big fan of Shoaib Malik. Still believe if he had continued his captaincy back in 2008, हमारी performance और अच्छी होती. That 2007 team under him was something else. My question about his fight with Tino Best in CPL, he never spoke about the incident. Please tell us what happened. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जो मेरी फाइट हुई थी टीनो बेस्ट के साथ वो ये थी कि द वर्ड्स वर यूज्ड बाय हिम वो अनएक्सेप्टेबल हो गए थे। पहले भी वो मुझे टीज कर रहा था, बट वो ऐसे वर्ड्स नहीं थे जो जिसका मैं रिएक्ट करता या रिएक्शन देता। लेकिन वो ऐसे थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो वो वैसे ही रिएक्ट करता जैसे मैंने किया था। कह सकते हो वर्ड्स टीवी पे कहे जा सकते हैं? नहीं, वो बोले नहीं जा सकते टीवी पे, और आई गेस उनको इग्नोर ही किया गया तो अच्छा है। I'm saying it in a nice way. Tino Best, I don't know the guy, whatever I read about him, जो भी मैंने उसके बारे में पढ़ा है या सुना है, he's quite not there at times. So Tino is not the best. हाँ, उसके बाद जो फाइन्स हुए थे हम दोनों को, both of you. टीनो बेस्ट को he was sent home for about 10 days. ये उसकी पनिशमेंट थी और मेरी पनिशमेंट थी $5,000. तो कौन सी पनिशमेंट आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर थी? $5,000 वाली। क्योंकि मैचेस अगले 10 दिन में ना 5 और थे। अच्छा, ओके, तो सो यू गॉट ओके पे रिकवरी होगी ना, रिकवरी। इट इज यू नो हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट नहीं थी। ओके, वो वर्ड्स वर यूज्ड बाय हिम, वो unacceptable. Sure. All right. Well, good for you for standing up to that. Unfortunately, sad for you. You lost $5,000. With that, we move on. ESPN Crick Info ने ट्वीट किया है कि on this date today, in 1996, Wasim Akram registered the highest score by a number 8 batsman in Test cricket history. In an innings where no other batter from Pakistan crossed 60 runs, he helped Pakistan post 553 against Zimbabwe in Sheikhupura. He scored 257 runs. Agha ji, dasso, Bata ji, you want me to explain it? I can explain it beautifully. Please do. That's why I wanted to. I mean, Wasim bhai की वो इनिंग का तो कोई मैच ही नहीं है। I mean, balls were flying all over the place. I don't know, मेरा 13 या 14 ऐसे कुछ छक्के के नंबर चले। उसमें बहुत सारी गुगलीज भी होंगी उसकी। एक फिर लेग स्पिनर था उसमें, हाँ ज़्यादातर उन्हीं वजह से। लेकिन it was just an amazing inning. I mean, outstanding knock.
तो आपने how did when he came back to the dressing room, how did you all address him? What did you say to him? Before that, I tell you, Saklan out हो गया. अच्छा तू बता, you tell probably. Because it happened to me. That's Yeah, why. yeah. लेकिन आपने वही बताना है जो आपके दिल में आ रहा है। नहीं दिल में नहीं आ रहा सर, ये हुआ है। जब आप बैटिंग करने आए हैं तो मैंने आपको रास्ते से वॉक करके पूरा समझाया। आपने पूरा समझाया। मैंने कोई कंप्लेन है ही नहीं। I want to hear this. But now tell explain. एक मिनट, ladies and gentlemen, here comes an Agha Bata special. Please. Look, I think, I mean, सवाल उनका ऐसा था कि it was how good an inning was that. Yeah. That was an outstanding inning. So that's done and dusted. Side पे कर दें, ठीक है ना? अब हुआ क्या है कि मैंने, I was the next man in. Okay. Saklan scored, I think, 80 odd 80 in odd, about 79. 300 deliveries or something like that. You know, so I was padded for about day and a half. And I was sick of it. इतना मैं तंग आ गया था, थक गया था, मैं पैड ला के रख देते कि इन्होंने आउट नहीं होना. It was like that. And अचानक सकलैन आउट हुआ है और मुझे फटाफट पैड करके मैं गया हूँ अंदर और मुझे रास्ते में हाफ पे वसीम भाई मिले हैं और वसीम भाई ने मुझे हम लोग क्योंकि अंदर पंजाबी बोलते हैं तो मुझे रास्ते में कहते हैं ज़रा ध्यान नाल खेली पहला अंदर तेज़ आंदा ही. मैंने कहा व्हाट? मैं कहा 250 तुसी कीता है 80 हो करके आए जिन्हें बैटिंग नहीं आती, ठीक है ना? सो जिन्हें बैटिंग नहीं आती. I'm just joking, okay? Take it lightly, Don't forget ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦੀ ਹੈ? अब निकल गया. You won 12 games. Yeah, I know. अब कवर नहीं So हो सकता. सकलैन साहब आउट हुए थे तो मैं अंदर गया तो भाई ने मुझे रास्ते में एक दफ़ा मैंने ये सोच के हल्का सा एटीट्यूड दिखाया कि यार तुसी 250 कीता है. बट देन ही सेड इट अगेन एंड अगेन 2-3 टाइम्स ही सेड ध्यान नाल. मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम. आई वेंट इन, आई टुक अ गार्ड एंड आई थॉट यू नो कैजुअल वे. फर्स्ट बॉल कौन था बॉलर? आई थिंक गाय बिटल, यू नो. उसने बॉल किया, आई गेस उन्होंने विकेट ली थी, थोड़ी एनर्जी आई हुई थी. उसने बॉल किया या व्हाटएवर, या मैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जो वसीम भाई कह रहे थे ना. आई डिडंट टेक दैट सीरियसली. वो फर्स्ट बॉल गिरा वहाँ पे एंड आई प्लेड इट वेरी कैजुअली कि ऐसे करके ना वो जुप करके अंदर आया और मेरा जो मिडिल स्टंप थी ना कार्ट व्हीलिंग, लिटरली कार्ट व्हीलिंग वेंट टू द कीपर. ठीक है ना? और मैं शर्मिंदगी नाल मैं नाल देखा भी नहीं. एंड आई टर्न अराउंड एंड आई लिटरली पैडेड फॉर अबाउट 9 आवर्स 6 आवर. एक तो पूरा दिन ये दोनों खेले ना और अगला दिन भी मैं मेरा मतलब 2-3 घंटे में पैड करता रहा. So the story was this कि always listen. The moral of the story is that always listen to your elders. एक क्वेश्चन है मेरा before we get on to our show. मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, आई एम श्योर मिसबा भाई ने भी सुनी होंगी. पुराने क्रिकेटर्स ये कहते थे, जैसे आपने कहा यू वर पैडेड अप फॉर डे एंड अ हाफ, राइट? तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं वो कहते हैं हम किसी को देखते थे बैटिंग करते हुए तो हम नेक्स्ट अगर इन है तो वो शॉपिंग करने चले जाते थे, बोलते थे आउट ही नहीं होंगे. ये सही है ये स्टोरी? कि मैंने निकाल के चलते हुए मैच के बीच में से आप कहीं छोड़ के जा सकते हैं. जी मैंने ये स्टोरी सुनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. जिसने भी आपको स्टोरी सुनाई है ना उसने ठीक ठाक छोड़ी है. ये तो वेरी एग्जैजरेटेड स्टोरी है. हमें से खुद बंदा खुद ही सोचता है. क्रिकेट में you had coaches, you had the whole staff, departments थे, हर एक की जॉब ऑनलाइन थी. You can't just go. You can't just leave the ground. I think it's just made up story. Probably one off wow we don't know about. To be exact, you waited for 313 runs. There you go. That's about 9 and 10 hours of playing. I never batted for so long. So were you exhausted? Were you exhausted at the end of that innings? But different kind of exhaustion थी वो. In lower back और hamstring. अच्छा. अगले दिन लग रहा है किसी ने डंडों से मारा है. He was वो किसी वो मसल used to नहीं थे ना about 1.5 दिन बैटिंग करने के. जिंदगी में सारी बैटिंग मिला लो 1.5 दिन की नहीं थी. तो वो एक ही उस मैच में 1.5 दिन बैटिंग कर ली. Well, you know what? Thank you very much. Super proud of that. Yeah, super it was a proud big deal for me too. you and grateful for you for your service to our country, to all 4 of you. But for this innings, you know, I think it's still a record. It is still number 8, man. That's just 12 sixes in an inning. बहुत सारे करीब आए हैं. मक्कलम आया, इंटरनेशनल आया, फिर कोई और भी 11 पे आए हैं. फॉलो कर रहा होता हूँ मैं डायरेक्ट. हल्का सा कार्ड नहीं होता है. नहीं आगे जी तुसी आगे सो. All right. Question. Bring it on की तरफ से सवाल आया है. Question to Waqar Younis भाई. Should T20s include more than one bouncer rule so bowlers can get less bashed?
Very good question. Yeah. Very good बट question. देखिए 20 ओवर्स में अगर आप 2 कर दोगे तो वो समझो 2 बॉलें तो काइंड ऑफ ज़ाई हो जाएंगी. 1 इज ओके आई थिंक. मतलब ज़ाया मतलब क्या हो जाएंगे? मतलब बाउंसर हो गया. इट्स काइंड ऑफ अ डॉट बॉल हो सकती है ना, शॉर्ट बॉल कई दफ़ा. So that's why I'm saying that it's a good question because you know कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कुशन बॉलर्स को भी मिल जाएगा. Yeah, that is the only that my respect, question. yes. हाँ, उसमें मैं कहता हूँ कि it's not a bad idea. You know, I'm not sure कि this will happen because जो cricket committee है, they probably want more runs. They probably want the batters to score more runs because entertainment is about batting. But What do you think? I like the idea. आई थिंक अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गेम जो है वो चले जाएगा 140 प्लस वालों की तरफ. फिर आपको हार्डली मीडियम पेसर्स मिला करेंगे अगर ऐसा रूल हो गया. Okay, interesting. Different. Misbah, you have a thought on that? देखिए बात वही है, T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट रन्स और कमर्शियल इसका वो है, लोग देखने आते हैं ज़्यादा रन्स और ज़्यादा शॉटें और ज़्यादा छक्के चौके. तो अगर 2 बॉल आप निकालेंगे, अगर 4 पेसर्स खेल रहे हैं किसी टीम में, वो हर ओवर में 2 बॉल ऊपर से गुजारना शुरू हो जाएंगे तो देन इट कुड जस्ट नहीं ऊपर से तो नहीं गुजरना ना, ऊपर से तो वाइड हो जाएगा. It has to be a shoulder. अगर हम स्टैट्स देखें तो ज़्यादा रन स्क्वायर ऑफ द विकेट बनते हैं और अगर दूसरा बाउंसर आया भी तो मुझे लगता है कि रन ज़्यादा भी बने. So there you go then. All right, So that's it's a good interesting. question. It's a very good question. शाहरुख खालिद का सवाल है for Shoaib Malik and Misbah ul Haq. आप दोनों से आज तो Pavilion. There was a leggy for Pakistan called Mansoor Amjad from Sialkot. Why did he not get enough chances to represent Pakistan? Was he not good enough? I know that he had a finger injury he had later on, but he could have been given more chances. So I think they want your feedback. Since he's from Sialkot, aslo thoda. बात carry on. Slow थोड़ा. बाहर लड़ना है, ऐसी कुछ किया है पहले ही किया. उसका मसला ये था when he played international cricket तो वो एक ही मैच खेले थे T20, वो भी कराची में हुआ था. उनका इशू ये था कि I don't know the exact word for that injury, but उनका ये था कि उनको लेग स्पिन करने की वजह से उनकी एक नर्व जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है ना खिंच जाती थी. तो डॉक्टर्स ने उसको बोला कि तुम लेग स्पिन जो है वो छोड़ दो. तो इस वजह से ही स्टार्टेड बॉलिंग ऑफ स्पिन और वो बैटिंग जो है उसने शुरू कर दी और ये रीज़न है कि उसके बाद weird injury नहीं? It is. Yeah, it is. Never heard that. It's a different. उसको ये इंजरी थी. ये द ग्रेट कादिर भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे. उनके जो बेटे हैं इमरान कादिर, क्योंकि मैं उनके साथ अंडर 15 वर्ल्ड कप हम लोग साथ में खेले हैं तो उनको भी ये सेम इशू था. Okay. तो इस वजह से उन्होंने भी जो लेग स्पिन थी वो फॉर द नॉलेज ऑफ माई सेल्फ एंड ऑल द क्रिकेट लवर्स, तो आप ये मसल या नर्व ये मसल्स इंप्रूव नहीं कर सकते इवेंचुअली कोई मसल से? उसमें वसीम भाई जो मेरे पास बहुत लेस इंफॉर्मेशन है अगर, बट आई विल फाइंड आउट एंड डेफिनेटली आंसर प्रॉपर्ली. लेकिन ये था कि उसमें वो कह रहे थे एक सडन सर्जरी करवानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए. उस टाइम पे आई डोंट नो कि इतनी टेक्नोलॉजी थी जो आज के टाइम में हो सकता है उस इंजरी को फिक्स करने के लिए. इंजरी में वट एवर आई हैव लर्नड दैट सर्जरी is the last resort. Yes. It should be, it is the last resort. Don't go to a generally professional and say कि जी मैं तुम्हें operation कर दूंगा. Wait, look for other options. If that doesn't happen, then opt out for surgery. Otherwise, back, neck, wrist, ये sports injury में we have to be very careful. All right. वसीम, अगला सवाल है अरसाल की तरफ से और ये जो कि आपकी इनिंग की 257 की है, but it's a very interesting question, good question because it will take us back to the conversation of our fitness. अरसाल कहते हैं वसीम अकरम, वसीम bowled 28 overs in the first innings and scored 267 runs on 363 balls. How did he manage his fitness level throughout this game and his career? If I'm blowing my own trumpet, I can say the next game I got 11 wickets as well. Okay, the next test match after amazing. 2 days. I think those days our fitness level, we ran a lot. I mean, Waqar knows, Misbah तो बाद में आया, we played with me, Shebi played with me, भी हमने रनिंग बड़ी की थी, रनिंग और स्प्रिंटिंग. इवन 96 में भी हम जब नेट करते थे तो मैं या जो भी हमारे साथ थे बॉलर्स उस वक्त, हम कम से कम नहीं तो घंटा 1.5 घंटा नेट में बॉलिंग ज़रूर करते थे.
फिर उसके बाद बोर होके कभी लेग स्पिन करनी शुरू कर देते थे। मुश्ताक का सारा कॉन्फिडेंस मैंने और इसने ख़राब किया, और स्पेशली इंजी ने उसका कॉन्फिडेंस नेट्स में बड़ा ख़राब किया। अजय तुसी ओदा कॉन्फिडेंस खराब कीता है, दिस इज खराब। मुशी का बैटिंग में, वही ना। बैटिंग में, तीसरा नाम कोई देना है ये आगा साहब और बाटा साहब के साथ, तीसरा नाम कोई है? नहीं दे ले, क्योंकि आई ऑल्सो हैव सम वर्ड्स फॉर वसीम भाई। प्लीज गो अहेड। वसीम भाई, श्रीलंका की गर्मी, यस ठीक है, या यू टुक 5 विकेट्स, और मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद आपकी बैटिंग में, आइदर वो 100 था। अभी पहले में 70 था, 5 विकेटें, फिर दूसरे टेस्ट में, फिर उससे पहले वेस्ट इंडीज से हम वहाँ आए थे, वहाँ 11 विकेटें लेके आए थे यहाँ पे। दोनों जगह पे गर्मी जो थी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टूर। वो 4 महीने का टूर था। पहले आप बने थे वहाँ मैन ऑफ द सीरीज जो शारजा में हुई थी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, फिर वेस्ट इंडीज़ गए, फिर एशिया कप गए बांग्लादेश, और फिर आए थे मेरा ख्याल श्रीलंका। आई थिंक आई सपोज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त, टाइम नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2099, यू नो, ये न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस इन स्पोर्ट्स आ रही थी हल्की हल्की। वी हैड अ वेरी गुड फिजियो देन डैन कीज़, ही वाज ब्रिलियंट स्पेशली उस टाइम के लिहाज से। तो वो इंजरी या कोई निगल्स तो होती थी। यूसी हमें ऐसा बड़ा किया गया हमारे सीनियर्स ने कि सर दर्द, फास्ट बॉलर को निगल होगी। कोई दुनिया में फास्ट बॉलर नहीं है, वो सुबह उठेगा उसको यहाँ हल्की सी निगल ना हो, यहाँ ना हो, यहाँ ना हो। सो वो आपने, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। राइट। छोटी मोटी निगल से मैच मिस नहीं होता। मुझे याद है एक फैसलाबाद में टेस्ट मैच थे 89 में, आप भी खेले थे वेस्ट इंडीज़ से, तो पूरी रात आई हैड अ फूड पॉइजनिंग, पूरी रात आई वाज थ्रोइंग अप। इन द मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई हैड अ फीवर, सो आई वेंट टू इमरान भाई ब्रेकफास्ट में, कहा स्किपर मेरे बहुत बुखार है, तो मेरा ख्याल में मेरे से आज बॉलिंग नहीं होगी। तो उन्होंने आई थिंक मुझे एक आंसर बड़ा सिंपल से दिया, वैज आई डोंट नो बुखार है कि नहीं है, यू फ्रॉम थिंक नाउ हाउ इज यू गोइंग टू बोल at 9 o'clock, 9:30. Wow. So I bowled first over, I felt a bit weak, and after 2 overs I warmed up and then everything went okay. Wow, that is amazing. आपको नाम दे सकते हैं छोटा बाटा, ठीक है ना? बाटा, आगा बाटा तो छोटा बाटा, ठीक है? वो खुद ही कह रहा था तीसरा नाम है, कोई तीसरा नाम है। I've played with these two greats. Yes. और मेरी वो blessings थी कि इनके साथ खेलना, या उस टाइम के जो क्रिकेटर्स थे, I've learned a lot from all these guys. That is, there's no question about it. And that's very good of you to be acknowledging that. And with that, we go on to the next one. This is from Mustafa Abid, and Mustafa Abid is asking all 4 skippers, who were your cricketing idols? And do you have any memories of watching them in real life? So let me start with you, Shoaib, since you just said that. मैं वसीम भाई का नाम लूँगा, not because he's sitting in front of me. I guess the amount of experience he shared जब मेरा पहला मैच था, wasn't easy for me to come and bowl in front of Brian Lara, my first ever game, international game for Pakistan. Wow. और the words वो मैंने 3-4 दफ़ा वो चीज़ बोली है, तो I would say वसीम भाई। That's really nice. Yeah, I suppose जैसे मेरे पे इम्पैक्ट डाला मेरे सीनियर्स ने, उनसे मैं सीखा हाउ टू गिव कॉन्फिडेंस टू So योर। who was your idol? अब आई हैड, मेरे 2 थे ऑब्वियसली, एक जावेद मियांदाद, द ग्रेट जावेद भाई, और एक स्किपर इमरान भाई। इमरान खान। एंड देन मुदस्सर नज़र ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट जब मैं टीम में आया हूँ। उन्होंने हम सब जूनियर्स को बहुत हेल्प की है। बट जावेद भाई और इमरान भाई के पोस्टर अखबार वतन के वो मिडल में नहीं आते जी थे? बिल्कुल आते थे। वो पैसे इकट्ठे करके वंस अ मंथ अखबार वतन लेना, वो लगा के फिर वो लगाए हुए थे मैंने। और वो एक आता था मैगजीन द क्रिकेटर, उसका भी जो स्प्रेड होता था बीच का, उस पर पोस्टर होते थे, तो आप सबके पोस्टर मेरे पास भी लगे होते थे। पायन ताड्या सारे दे सब, all of you. No, you know, आप लोगों के पोस्टर तो हमारे दिलों में लगे हुए हैं for everything that you've done for Pakistan and for our game. Growing up, we all watched and hear also in the radio also इमरान भाई के बारे में हमेशा ही सुना था। कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि you know one day I'll be playing you know with him on the same team playing for Pakistan. I mean पाकिस्तान के साथ के लिए खेलना भी बड़ा एक बहुत बड़ा एजाज़ था, और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वन डे आई विल प्ले फॉर पाकिस्तान। एंड देन व्हेन इट हैपेंड एंड माय फर्स्ट मीटिंग विद इमरान भाई वाज वेरी अनयूजुअल,
और यू नो और एंड आई कांट फॉरगेट दैट. आज भी मैं जब सोचता हूँ और जब मैं उसके बारे में मुझे ख्याल आता है तो आई जस्ट गेट गूज़बम्प्स. टेल अस मीटिंग क्या होता? आई नो यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज. आई मीन रिपीट ही करने वाली बात है कि यू नो मैं ऐसे शायद उधर से मिला. नहीं, आई डिड प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर दैट. आई प्लेड 6 or 7 games. I took wickets. I got selected. I played under 19 Pakistan also. Then I got selected for national team in 22 boys. That's when I first met Wasim in the stadium. You know, he used to play for Lancashire, or he used to come in that red and blue Lancashire. उस ज़माने में ये ज़रूरी नहीं होता था पाकिस्तान की किट पहनो. So it was just like something really big you seeing. Imran bhai नहीं आ रहे थे. He was sick and I played that game in between that camp. He saw me on the TV game, and then he came to the ground next day. So I'm just cutting it short, वरना बड़ी लंबी हो जाएगी. तो उसके बाद the day he came and he saw me first time in the nets, and when he came close to me, he was like a, you know, God then, you know, for us. He put his hand on my shoulder and he says, जाके पैकिंग करो, तुम शारजा जा रहे हो. That was the first word he said to me. Right. Without, I don't know if he consulted with the selectors or not. उस ज़माने में क्या होता था, I can't even remember that. But you know, that was his first word. And literally, I'm not exaggerating. मुझे ऐसे लगा था जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई है. क्या बात है. What a beautiful memory. Misbah, your cricketing idol. 92 में especially World Cup, इमरान भाई और जावेद भाई. That was obviously जो पहला जो इम्पैक्ट आप पे पड़ता है उसका. और ऑब्वियसली एट दैट टाइम मैं टेप बॉल खेलता था और क्रिकेट बॉल से कोई 92 के वर्ल्ड कप के बाद ही मैंने क्रिकेट बॉल जो है वो खेलना शुरू की. बट ऑब्वियसली लॉट ऑफ हीरोज़, लेकिन जो पहला वो एक इम्पैक्ट था वो इमरान भाई और जावेद भाई थे. दैन ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान में भी, बाहर भी. स्टीव वॉ बैटिंग में वो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट आया था आई थिंक 78 टूर जब इंडिया आई थी, जहां इमरान भाई बिकेम अ बिग स्टार. ही गॉट रन्स एज वेल विद बिशन सिंह. ब्लैक एंड वाइट टीवी था, मुझे याद है. उनके बॉलर एक करसन घावरी आए थे जो इन स्विंग करते थे, मीडियम पेसर थे, और साथ में एंड में फिर लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते थे. आई रिमेंबर दैट. 82 बाद में आए थे. 78 79 इफ आई. उस ज़माने में तब मेरा क्रिकेट इंटरेस्ट आया था. इंडिया जाते थे 2 साल के बाद वो लोग आते थे. It was a 5 test match. Started watching them on television. फिर वो commentary, you know, test cricket ही होती थी तब. It was. What great memories. What great history of cricket. And what an honor for me to be sitting right in the middle of all of this, all of these legends and listening to this first hand. अगला सवाल जो है ये आया है उस्मान की तरफ से. और उस्मान, मिसबा आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि what were your feelings once you got run out in Delhi Test against India when you jumped inside the crease and the ball hit the wickets? ऑब्वियसली जब आप आउट होते हैं तो कोई अच्छा फील नहीं करते, लेकिन उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता. शायद क्योंकि वहाँ पे थे, उनको पता था कि वो मैं कैसे खेल रहा था. आई स्टिल रिमेंबर टेस्ट मैच का पहला दिन हमने टॉस जीत के बैटिंग की. आई वाज फाइन. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे वो स्टार्ट हुआ फीवर. अचानक मेरी हालत ऐसी 104 बुखार और आई वाज डाउन इन द ड्रेसिंग रूम. बुरी हालत, बैठा नहीं जा रहा. और देन सडनली वो जो भी हमारे आउट हुए, आई हैव टू जस्ट गो इनसाइड. और जिस तरह वो मैंने इनिंग खेली वो उसी बुखार में थी. और आई डोंट नो, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ये भी था कि वनडे में इसी तरह रन लेते हुए गुवाहाटी में शायद हमारा पहला वनडे था, थ्रो आई तो मैंने जंप नहीं किया, मुझे यहाँ लगी और इधर काफ में मेरे ठीक ठाक वो जोर से लगा निशान बन गया. और मेरे से थ्रू आउट द वनडे सीरीज वो, क्योंकि ऐसा मसल है कि जहाँ पे पिन्नी भी थी हड्डी बड़ी है माशाल्लाह. वो मूव करते हुए मुझे वो फॉर अ सेकंड जब थ्रो हुई है तो वो पता नहीं वो मेरे कहीं ज़हन में आई क्या चीज़. व्हेन आई जस्ट जंप्ड, मैंने कहा ओफ जीसस, क्या मतलब क्या किया मैंने. जितनी देर में मैंने नीचे आना था उतनी देर में काम हो गया. वो 2007 में पैडल लगी, उसके बाद नहीं मारी. फिर जंप मार के रन आउट हुए. देखें, ये सीखने वाली चीज़ है कि एक दफ़ा आप गलती करें तो अगली दफ़ा दोबारा ना करें. नहीं, ऑनेस्टली
But so, do you think that pedal shot was a mistake, Misbah? I think not. I think it was a choice. It was a choice. Last wicket थी। इसलिए उसने चांसेस उस पर उसने हिटें मारी हुई थी पहले इस तरह की, अब वो नहीं लगी। इट वाज वन ऑफ दोस डेज। मैंने पहले भी उस दिन भी हमारी अच्छा, बात टॉकिंग अबाउट जंपिंग एंड कि वो दिमाग में आपके आया कि बॉल लगी है तो ये फिर मैं हट जाता हूँ या मैं जंप करता हूँ। समथिंग सिमिलर हैपेंड टू इंजमाम उल हक। तो पहले उनको हुआ आउट दे दिया चूंकि लग गई थी बॉल, जब लगी थी बॉल तो भी आउट दे दिया था, जब वो हटे कि यार बॉल में कहीं लग ना जाए तो भी उनको आउट दे दिया गया था। एक सीरीज में 2 दफा वही कह रहा हूँ ना, पहले एक दफा बॉल लगी थी तो आउट दे दिया, तो दूसरी दफा उन्होंने कहा मैं बॉल को अवॉइड करता हूँ ना लगे, तो बॉल से हटे तो भी आउट दे दिया। चूंकि उसने बल्ले से भी तो रोक ली थी थ्रो। लॉ जो कहता है ना, जो लॉ है ना, लॉ ये कहता है कि वो दोनों दफा आउट था। Okay. लेकिन वो जो थ्रो कहती थी कि स्पिरिट ऑफ द गेम आपको थ्रो नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज ही वाज लाइक कैजुअली इट वाज देयर, और उसे पहली दफा थ्रो की तो वो इंजी की तरफ ही आ रही थी एंड स्टंप्स वर बिहाइंड हिम, ही वाज आउट ऑफ हिज क्रीज एंड ही स्टॉप द बॉल। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो गेंद रोक दी, उन्होंने अपील की, ही वाज आउट ऑफ द क्रीज, सो आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया गेंद को डेलिब्रेशन में, तो आउट दे दिया। नेक्स्ट टाइम same happened in the same I'm not sure कि उसी टेस्ट मैच में, but happened same. So he threw the ball again in a very similar situation and he moved away from it and ball hit the stumps and he was out of his crease. So these were the 2 episodes. They were indeed. हैदर गुलाम का सवाल आया है जर्मनी से और ये कहते हैं कि I'm from Germany and would like to popularize cricket here. How can one develop a platform for making cricket more popular in these kind of regions? So any input that you guys would like to put in? Individually तो बड़ा मुश्किल है। Obviously ICC has to get involved as well. जैसे वो कर रहे हैं, ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं क्रिकेट को, तो they should come to. I'm sure there are a lot of expats, Pakistani, Bangladeshi, Indian, Sri Lankan, Australian. They must be settled there, working there, living there. So cricket is a very unique sport. Yeah. I mean it's getting all over the world now, slowly but gradually. But ICC has to get involved. I think that's how you can improve cricket in Germany. आप तो कह रहे थे ना 20 टीमें कहाँ से मिलेंगी? I mean, to that level I was talking about. ये है कि वसीम भाई वहाँ के जब तक लोकल, वो आईसीसी का रोल है, जाहिर है, जब तक वहाँ के लोकल लोग ये खेलना शुरू नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे वहाँ, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। खेलना जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी नहीं है, इन्वॉल्व होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड बनाना, ये सारी चीजें। 84 FIFA World Cup, if I remember correctly, was happened in USA. Yes. Couple of years, I don't know the exact time. I think FIFA spent about $1 billion then to get this game, soccer, mainstreamed in America. Mainstream in America, in school, in colleges. It didn't pick up. Yeah. I mean, it made a huge noise, but it didn't pick up. But cricket in America locals are not involved there as yet. उनकी अपनी स्पोर्ट है। एक चीज़ हेल्प कर सकती है, which ICC has been trying के ये अगर ओलंपिक का पार्ट बन जाती है, 2028 की ओलंपिक्स में, then definitely that will help. That would help. फिर अमेरिका हर जगह can be part of Olympics. I think. Is it like still long enough? Maybe T10 can be. Maybe T10 can be. T20 might be just a little bit long. T10 तो यार you can't even grab a sandwich while you're watching the game. As a team you go there over खत्म हो जाता है। Olympics में फिर मसला ये ना कि टाइम का इशू आ जाता है। 20 overs which should be fine. It's 3.5 hours, 3 hours. Well, we definitely hope to see the game of cricket in the Olympics. और इसके साथ ही दोस्तों हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा right here on the Pavilion. Keep watching ये Sports 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup और आपके सवालात at Ask the Pavilion continue after this break. Wow, welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम और आप लोग देख रहे हैं The Pavilion on A Sports 10 Sports and the ARY Zap app. And with me in the studio, of course, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. And Ask the Pavilion, hashtag Ask the Pavilion के सवालात का सिलसिला जो वो है जारी. But in the break, we got a stat from Mazhar, our statistician, the gentleman who gives us all these facts and figures. And we found out that Wasim Akram bowled 50,000 deliveries in his first class career. And Waqar Younis bowled 39,000 deliveries in his career. That's a lot of reloading and delivering. उसमें से कम 10,000 नो बॉलें नहीं दी होंगी, मैंने पकड़ा नहीं होगा। 1000 deliveries means 8,000 over.
उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा। एंड दे नो बॉल्स इंक्लूडेड, नो वाइट बॉल्स, नो नेट्स, नो द एग्जीबिशन गेम्स वी प्लेड। दिस इज और ओडीआई इसमें वनडे मेरा नहीं ख्याल है, मजर इज वाचिंग, यू कैन सेंड द स्टैट कि हमारी वनडे क्रिकेट में कितनी गेंदें हैं, बिकॉज उन दौरान 3 वनडे कंपटीशन होते थे इंग्लैंड में जब मैंने इसने ज्वाइन किया है। एक 40 ओवर का होता था संडे को, और उसमें बेस्ट चीज़ क्या थी 40 ओवर क्रिकेट में कि आपका रनअप जो फास्ट बॉलर का होता था वो 17 यार्ड्स तक होता था। हर बॉलर को वहीं तक रनअप लेना है। So मेरा तो वो नेचुरल रनअप था, so I was fine with it. But people like Waqar did okay as well, but Donald and Ambrose they struggled a bit. और फिर उसके बाद फिर 55 ओवर का होता था, Benson B&H, and then the net west was 60 ओवर। वो 60 ओवर खत्म ही नहीं था होता, उसमें लंच भी होता था, टी भी होता था, फिर अगले दिन भी आना पड़ता था। It was too long. And even the first class in England at one stage, it was 115 overs. 115 भी थे 104 overs. 108 I played, 110 I played in a day, 6.5 hour a day. So आपने 2.25 घंटे में 4 मिनट के हिसाब से जो ओवर करने होते, रन रेट was so important because फाइंस होने होते थे, and they were so particular about run rates. Do you think बाटा जी अगर आपका रनअप छोटा होता तो आपकी भी 50,000 डिलीवरीज हो जाती कहीं आगा साहब के करीब? मतलब अगर माइलेज देखी जाएगी तो मेरी भी 50,000 वाली होगी, क्योंकि अगर रन माइलेज अगर की जाए कि कितना भागे आप, वो मेरी भी उतनी होगी। और दूसरा ये है कि आई थिंक इस प्रोग्राम का नाम पवेलियन से चेंज करें हम। आगा बाटा शो। आगा बाटा शो तो ये है, सबको पता है। It's a catchy name. आगा बाटा शो, आगा बाटा एंड छोटा बाटा शो। छोटा बाटा भी आ गया हमारे पास। ऑलराइट दोस्तों, वापस चलते हैं आज से पवेलियन की तरफ से और ये सवाल है अहमद अली तबस्सुम का। कैन आईसीसी मूव द इंडिया पाकिस्तान मैच टू टैस्मेनिया वेयर द वेदर इज रिलेटिवली बेटर एंड इज इनसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्या नाम बताया था हमारे भाई का? इनका नाम है अहमद अली तबस्सुम। Ahmed, very simple. These venues had been decided long time ago, and changing a venue, especially that too of an Indo-Pak game, I doubt they can do it the last minute. अगर बारिश है तो बारिश है. Nobody can change it. Nobody can take it to an indoor stadium. जैसे मेलबर्न में वो इंडोर स्टेडियम भी है ना, वो इत्तेहाद जो भी है जहाँ पे जी मेलबर्न में जो है जिसकी छत बंद हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी वहाँ भी नहीं मूव कर सकते। आपको प्रोडक्शन एवरीथिंग इट्स नॉट दैट इजी कि आप टिकट्स आर सोल्ड। 100,000 टिकट्स में 6 बंदे बैठते हैं। इट्स अ स्मॉल स्टेडियम कंपेयर्ड टू एमसीसी। 100,000, that's going to be one buzzing stadium, and what a clash, India versus Pakistan. मोहम्मद सरोश आलम का सवाल है, सलाम to all, asking the 2 W's that you both have played with Saeed Anwar, and he used to be the opening batsman. Do you think he would have been a great T20 batsman? He would have been my first pick in T20 format. इस कमाल टैलेंट था सईद अनवर का भी। A bit सईदी नाराज ना हुई, bit laid back, मगर वो हर ट्रेनिंग टेस्ट में ना वो डॉक्टर्स को काबू कर लेता था और हर टेस्ट में वो नंबर 1 आता था। बट एज फार एज इज बैटिंग कंसर्न, मैंने बड़ा कम देखा है इतना नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर। तो इसकी जो रिस्क थी, जो वो मुझे याद है उसने जब इंग्लैंड में आई थिंक ओवल टेस्ट में इसने 180 और कुछ की, 194 तो उन्होंने 3 गलियां रखी थी इसके लिए, 2 गलियां, एक ऊपर आगे और एक थोड़ी पीछे, और बेस्ट फील्डर ये इसने कुछ 5-6 चौके उन दोनों के दरमियान से कह के मारे हैं। उसको इतना कंट्रोल था इसको। आई डोंट थिंक सईद भाई विल माइंड, क्योंकि सईद भाई टीवी नहीं देखते आप। कोई बता दे या दस दे तो अलग कर लेगा, फिर देन यू आर इन ट्रबल, अदरवाइज आई डोंट थिंक इज एन इशू। सईद भाई जैसा प्लेयर बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर टैलेंट होता है। जिस तरीके से वो एंगल बैट से दूर से खेलता था, ही वाज नॉट लाइक अगर आप टेक्स्ट बुक निकालेंगे कि जी बड़ा क्लोज बैट एंड पैड और ये वो, एंड ही वाज एग्रेसिव। टेस्ट मैच हो, वनडे क्रिकेट हो, ही was a different breed altogether. One of the best we have seen, and what a coincidence कि ये जिस मैं दुबई से जिस फ्लाइट पे आया हूँ for the Pavilion, he was on the same flight. So we had a bit of a chit chat and all that and everything, and he did know about the Pavilion, and he said कि वो बाकी आ गए, मैं कि जी सब आ गए, we're all coming to। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि इनकी चप्पू वाली कश्ती रास्ते में ही फंसी हुई है। That's not a good news अगर वो देखते हैं तो। I don't know. He knew about it. I don't know if he sees it or not, but he asked me this question specifically, and he said बाकी सब खैरियत and all. And what I really like about his humbleness, he's a very very humble guy. वो अपना सामान खुद उठा रहे थे बेल्ट पे से, खुद रख रहे थे ट्रॉली के ऊपर, it was just very nice. And great sense of humor. Oh, great sense. झुकते नहीं लगे आपको?
बस बहुत सारी चीजें वो So many stories, but we can't say it on air. Yeah, but what a great batsman he was. You इसलिए know, आप थोड़े बेहतर भी हो गए हैं। no question. आपको बेहतर लग रहा हूँ मैं? Humble हाँ जी, रुक क्योंकि जाए, आप मैं ब्रेक में flight- बताता हूँ मैं उनके साथ कितना आप फ्लाइट पे आए हैं ना। There's a break. चेक करो ना जरा छोटे बाटे नू नो स्ट्रेट थैंक यू आई अप्रिशिएट कि आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि आप बेहतर हो गए आई अप्रिशिएट दैट मैं बेहतर हुआ हूँ मिसबान जो मुझे रोजाना कॉलर से घसीट के लेके जाता है जिम के अंदर होटल के अंदर ना उस वजह से जो ना बेहतर होना शुरू हुआ मिसबान थैंक यू वेरी मच ते नाले राती फिर मैंने 1.5 टन रोटी भी खिला दी लेकिन यकीन करें वो आपको खींच के नहीं लेके जा सकते। हाँ Request शाबाश कर बॉल पकड़ all right we're throwing things at each other we've got a surprise for all of you here the Pakistan sorry Shoaib Pakistani team Pakistani team's arrival into Melbourne they got into Melbourne let's take a look this is the team arrival आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है okay how are the boys looking calm Look, I think, yeah, I mean, जीत के आ रहे हैं, so the body language is really good. That's what I like. You know, New Zealand में Tri Nation जीती है, so that must have given them a lot of confidence. I was there, you know, I enjoyed what I saw, and hopefully, I'm really praying that you know, जो भी थोड़े से deficits हैं हमारे, जो थोड़े से problems हैं, issues हैं, वो अगर solve हो जाते हैं, will be a serious force in this World Cup. हसनैन इशफाक का सवाल है शुएब मलिक आपसे और हसनैन इशफाक ये पूछ रहे हैं कि शुएब भाई व्हाट डिड यू से टू हसन अली व्हेन ही ड्रॉप्ड द कैच इन द सेमीफाइनल लास्ट ईयर बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली वी ऑल सॉ इट हियर हम लोग सब यहाँ लाइव देख रहे थे यू रैन अक्रॉस ऑल द वे सो व्हाट वर योर वर्ड्स टू हिम And somebody was very emotional here that day also. I don't want to go there right now, but I'm just telling you. Okay. somebody was insisting catches don't win matches मैं उस पे क्या कह सकता हूँ देखिए जब आप टीम गेम खेल रहे हैं तो स्पेशली कोई भी कैच नहीं गिराना चाहता और वो इतना बड़ा मैच था नॉकआउट स्टेज का मैच था और वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल हो और क्रंच सिचुएशन में आपसे कैच गिर जाए तो आई गेस वो फीलिंग्स वो ही बंदा बता सकता है जिससे कैच गिरता है Absolutely. तो सिर्फ एक ही चीज़ मेरे माइंड में आई थी कि इसकी जगह अगर मैं होता तो मेरे दिल में क्या चल रहा होता तो उस वक्त सिर्फ ये You got to एक support the guy. एक बस आप यूं जाके उसको यूं कर देना कोई बात नहीं आई गेस वो उससे अच्छी चीज़ ही नहीं है उस टाइम पे that's a great yeah that's a great gesture एंड आई टोल्ड हिम कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड कोई मसला नहीं है वी आर स्टिल इन द गेम हाँ जब लास्ट बॉल हो जाएगी फिर आप कुछ भी सोचना स्टिल यू आर स्टैंडिंग एट द हॉट स्पॉट मे बी नेक्स्ट बॉल पे फिर आपके पास कैच आ जाए That's a very good message to give. That you got to remain engaged in the game. You never know. Sorry, Although 1996 में मेरे पास कोई नहीं आया. I had a tough gig in the quarterfinal at Bengaluru. Yes. Okay. And I went for a few runs and the ball was flying all over and Because it I was tough times. I can tell you that feeling which Yeah. Shoaib is saying. No, it's a very sinking feeling. You feel alone. Yeah, it's a very sinking feeling. I still remember I went out और ऑल्दो हमने रिकवरी कर ली थी आमिर सुहेल ने और यू नो सईद ने जो ऊपर से 11 ओवर में 100 कर दिया था विदाउट एनी लॉस सो वी डिड द रिकवरी बट वो 10-11 ओवर मैंने बाथरूम में गुजारे थे लिटरली यू नो आई पुट अ टॉवल डाउन एंड आई वाज जस्ट लाइंग देयर एंड आई वॉच्ड द हाइलाइट्स लेटर ऑन बिकॉज समबडी केम एंड सेज ओके एवरीथिंग इज गुड नाउ Okay. but those last 2 overs were you know really hard and tough and till the time you know we got back Because home I and think they were, by the time I was sitting outside, Yeah. being not playing and being a captain, imagine what I was going through. Yeah, Frustration, you know, I Anger. wish I would have been out there with the boys. this is cricket. Yeah. You know, you have to take good days and you have to take bad days. You know, they will come and you have to really take it on your chin and keep moving. Some people sink, some people just you know go away and they never come back. And you know, I was lucky enough and strong enough to make a comeback. I've Shoaib, you learned. want to quickly- sorry, I'll please. give one suggestion to youngsters कि जिंदगी में क्रिकेट में नहीं जिंदगी में ये चीज़ें आएंगी प्रेशर्स आएंगे प्रॉब्लम्स आएंगे यू टू बी एबल टू सॉल्व देम अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व उस वक्त नहीं हो रही माइंड में उसको पीछे ले जाओ ऐसे and ही। then come back the next day and think about it. There is a solution for everything in life. Very true. Shoaib, you wanted to add something? बहुत quickly? छोटी सी चीज़ है वो ये है कि जो बंदा परफॉर्म कर गया होता है यकीन करें उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती Yeah. क्योंकि वो एक हैप्पी बबल में होता है बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिनसे परफॉर्मेंस नहीं होती उनको उस टाइम पे जो है जो बाकी के टीम के मेंबर्स हैं वो उनके अराउंड रहें एंड मेक श्योर कि वो जो शेल में है वहाँ से
उनको निकालें। Great, and that applies everywhere in life, just like Wasim said. You can have it in life as well, ups and downs. और ये घरों में भी, अगर आपके घर में कोई इंसान जो है mental health से struggle कर रहा है, वो कर रहा है, go and support them as much as you can. If your child has not performed well in his exams, please don't isolate him. It's not end of the world. It's not the end of the world. Go and talk to him and try to, communicate with him. And with that, we're going to take one more break right here on the Pavilion. Don't go away. Keep watching eSports and 10 Sports and the ARY Zap app. मिलते हैं वक्फे के बाद. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम और आप लोग देख रहे हैं The Pavilion on eSports, 10 Sports and the ARY Zap app. Thank you so much for staying in tune with us and keeping us going. Or the day is coming to an end now. So one more time, let's take a quick recap of what has happened here today. Sri Lanka defeated Netherlands, and Netherlands were under a lot of pressure because Sri Lanka moved on to the Super 12 and Netherlands were stuck there. Now Netherlands pinned their hopes on the UAE to defeat Namibia. Namibia, who had defeated Sri Lanka earlier in the group, and Namibia looked like a very promising team to go into the Super 12, but unfortunately for Namibia, UAE played a really great game of cricket today and took them out of the competition. Very sorry for David Wiese, he was heartbroken, but congratulations to the United Arab Emirates. And with that, Netherlands also moved in to the Super 12. Tomorrow is the last G. Fakhr, over here, I must say that morning show and evening show, big difference in your energy. Yes, because honestly. I'm not a morning person, I know that. Thank you, Waqar. Don't tell this to the viewers. He's So what do you think? You're an evening person. No, evening energy is very different. आज 10-12 अच्छा भला मैं चल रहा था यार, ये भाई पॉइंट टेबल दिखा दे यार आप लोग यार, सारे मेरे जलसे में पथराव किए जाओ तुम लोग ना, ताकि मैं कुछ भी ना, जो मैं मोमेंटम बनाया सारे का सारा, वो सारा मोमेंटम ही तोड़ दिया आप लोगों ने. थैंक यू वेरी मच शोएब मलिक. इतनी इन्फॉर्मेशन इतने शॉर्ट टाइम में अमेजिंग. Well, that was the information, by the way. This is how it is. Omelette खा के आते हैं. Sri Lanka, Netherlands have gone through, and that's how Namibia, UAE go back home. But UAE go back home with that great win in the end. And कल जो दो मैचेस होने हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं, because here you're going to see the runner-up and the winner who are going to move into the Pakistan group, and this is going to be Ireland versus West Indies. This is the first game, and then the second one. We have there's a second match coming up. You have Scotland versus Zimbabwe, and we're going to be going back to Hobart, where the action is going to be coming out live to you. हम कल सुबह 8 बजे जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में बराह रास्त हाजिर होंगे प्री मैच के साथ. कल जब हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हमें इन ग्राउंड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बताया गया कि कुछ ग्राउंड्स के अंदर वो एक खेल होता है जिसकी वजह से ग्राउंड बहुत बड़े हैं वहाँ पे, और उसका नाम है फुटी. और जो कि वसीम भाई ने जो है वहाँ पर जाकर, Wasim has had the pleasure of actually playing in those grounds, the same game. And of course, Waqar, Waqar is as Australian as they get now, right? So I thought, why don't we have a footy ball here? Well, almost a footy ball. And I'd request Wasim and Waqar to give us a demo over there of how this sport is played. Please. Wasim bhai follow करते हैं, कौन सी टीम बता रहे थे आप? St Kilda. St Kilda. I mean, I don't follow it. Saint, ST. You've been forced to follow it. It's an area as well, and they have their own ground, and they have the best facility I've seen as far as the gym concerned. They have indoor pool, उसमें उनका treadmill भी है in the water, and a bicycle, and everything is underwater, and then the gym is 2 floors. Wow. वो ऐसे होते treadmill में दोबारा ठीक नहीं कराते, एक दफा खराब हो जाए थे. They just do it, right? Yes, that's amazing. जी, Waqar, please join Wasim, and this is footy, the Australian sport, जिसके बारे में हमें बहुत कम मालूम है. So we were asking the legends. आपको पता है दोनों का बड़ा डीप कनेक्शन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो I thought why don't we वो and Shoaib Malik and Misbah Haq, please join them. Let's all go join them right now. Let's try to figure out what this footing. पहले आप देख लें फ्लोर गीला तो नहीं है. हाँ, मैं पहले देख लूँ कि पहले फ्लोर गीला तो नहीं है. So this is how it is. And please, yes, small jumps. देखिए, जो हमने ऑस्ट्रेलियंस को भी देखा है, वो जब वार्म अप करते हैं, हम वो ऑड सी सॉकर खेलते हैं ना, बिकॉज हम पाकिस्तान में सॉकर क्रिकेटर्स नहीं खेलते, अजीब से लगते हैं, आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. But Australians, when they play footy,
they looked the part because Yes. they started playing footy when they were young. And that's the only sport in the world is only played in Australia. And every game is about 100,000 people watching. Yeah. Right. It's incredible. Wow, 100,000, that's a lot of people. And they वो बॉल भी फेंकते भी ऐसे करके हैं। और जब किक भी करते हैं, आपने देखा होगा वो बॉल थोड़ा पॉइंटी होता है। जब वो किक करते हैं, अब ऐसे बॉल को, फुटबॉल को तो किक लग जाती है, वो पॉइंटी बॉल को किक करना, फिर उसके बाद जब बाउंस करके आपने पकड़ना है वो बॉल, इमेजिन कहीं भी जा सकता है वो। ट्राई करो। बट किक नहीं, किक नहीं। शोएब आप सामने है ना, ये किक करेंगे, आपने कैच करना है। नहीं किक नहीं, बाउंस। just do what they do. अच्छा, bounce होता है। Let's see who catches it. Who catches it? Exactly. Come on. All right. That's why it's so difficult. Catch तो ऐसे है। ये ऐसे Again, bounce it again. मैं वैसे थोड़ी सी खेला हूँ क्योंकि मैं बिग बैश खेला हूँ। Yeah, तो yeah, okay, जैसे वसीम भाई ने कहा कि उनके जो वार्म अप्स हैं वो इसी तरह ही होते हैं। तो पहले दिन मैं खेला तो 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा तू साइड पे बैठ जा। Because we never played that sport. Okay. फिर मैंने उनको देखा कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे हाउ दे पास द बॉल, ऐसे चलते एक दूसरे को चलते एंड मेक श्योर कि आपके जो आगे है बंदा उसको पास नहीं दे सकते। पीछे की तरफ, हाँ, जो rugby की तरह पीछे है, हाँ, जो वाले को पीछे है That's उसको आप rugby. पास That's दे rugby. सकते That हैं। is rugby. That is rugby. वो इसको भी इसी तरह ही खेल रहे थे। नहीं है। Rugby is different. Rugby is अगर आप different to इसको एक footy. चीज तो समझ में आ गया कि तुमने नहीं खेली हुई। अगर आप जितनी इसको- खेली है ये He has played rugby. Warm up में ना they play rugby. They go sideways. रग्बी में बैकवर्ड देते हैं, फुटी में नहीं देते पीछे बैकवर्ड। देना होता। फुटी में होता है कि अच्छा, फुटी में you demo can देना। run with the ball, but after about I think 3 or 5 steps. 5 steps. Yeah, you have to bounce the ball while running. And then you have 1, to 2, 3, हाँ, 4, that is 5 what- bounce। bounce and then you have to pick. फिर आप ले सकते हो। पता मैंने क्यों बोला था? मैंने कहा कि बाकी इन्होंने देखी है कि नहीं देखी। अच्छा, वो तू एग्जाम इसलिए ले मैंने रहा कहा था। पीछे पास देखो करते जनाब, हैं। ये देखिए लेकिन मलिक मैं साहब वैसे भी एग्जाम नहीं दे जा रहे रहे थे। ये चेक करें, मलिक एग्जाम ले रहा था। अच्छा जी, बाउंस करें I ना। thought we were explaining. Okay, we're going to play now. Okay. Let's go. So look, फिर then- now the idea is to take possession of the ball. Yeah, then you can kick anywhere. Okay, Anywhere so in the anywhere field. on the set, And but the take field. possession Yeah. of the ball. Anywhere in तो the दो field. टीमें you can खेल रही हैं kick. क्या? दो टीमें, तो एक तो हो गई वसीम और मिसबा की और एक होगी आपकी। अब इसमें क्या होगा? तुसी रेफरी बन जाओ। मैं रेफरी ठीक है। ये देना इधर बॉल, पोजीशन आपके पास है जी। आप किक करेंगे, मिसबा आप रिसीविंग पे जाएं, आप उनको जाके ब्लॉक करें, आप किक टैकल नहीं कर रहे भाई, फेंकेंगे आज। फेंकेंगे, बट ठीक है। रेडी, लेट्स सी मसल हु नहीं, उस पास ही खेत है, इधर आ जाओ। अच्छा, ये ले भाई। ये ले। फखर का पूरा दिल है कि डिगो डिगे। नहीं, कोई नहीं डिगेगा, वो जिससे डिगना होगा, जिससे डिगना होगा मुझे कोई ना दे। चलो क्रिकेट पे भी बात कर लिए। नहीं, चलते रहे, because this is the end of the show and this is where we're going to end the kick show। नहीं किया किसी ने, किक भी कर लेते हैं, राइट किक, ऑलराइट। ओके, और दोस्तों ये हमारा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा आज द पवेलियन का। विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 AM। होपफुली नोबडी विल गेट इंजर्ड एट द एंड ऑफ दिस। सुबह खेलें 8 बजे ये गेम। No, absolutely not. Keep watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. We'll be back here with the ICC Men's T20 World Cup coverage, and hopefully nobody's going to get injured at the end of the day. Ask the Pavilion, सवालात भेजते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Oh, and the legends, thank you very much. Thank you. That was a close call. Oh.